یہ کہانی زمان قدیم سے ہے۔ ایک چھوٹے عربی شہر میں جاہد نام کا ایک حاکم رہتا تھا۔ اس کی طاقت کا کوئی حساب نہیں۔ خدا نے اسے دولت، اقتدار اور شہرت سے نوازا تھا۔ ٹھاٹھ دار اونٹوں کے کارواں، بھرپور خزانے، بہادر سپاہی اور شاندار محل۔ پھر بھی یہ تمام نعمتیں اس کے دل میں تکبر کی آگ۔ اس کی سخت سربلندی نے اسے اندھا کر دیا۔ ہر کامیابی کو صرف اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگا۔ وہ خیال کرنے لگا کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ غرور اس کے دل میں اس طرح گھر کر گیا کہ اس نے انسانیت سے رحم اٹھا لیا۔ غریبوں کی مدد کرنا تو دور، حق چھیننے لگا۔ جاہد کی ذات اتنی سخت ہو گئی تھی کہ جب کوئی غریب اس سے ملتا تو وہ بے رحمی سے اسے دھکیل کر باہر کر دیتا۔ کئی مرتبہ لوگ صرف انصاف کی التجا کرنے آتے، مگر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا، انہیں کوڑوں سے پیٹ کر بھگا دو۔ شہر کے باشندے اس سے اتنے ڈر گئے تھے کہ کوئی بھی اس کے سامنے سچ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ظلم کی ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کی نافرمانی پر فوری سزا ملتی۔ جیل زمین چھیننا، اس کی بے انصافی کی داستان آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ آپس میں پچتی، کیا یہ انسان اتنا بے خوف ہو گیا ہے کہ خدا کی پکڑ سے بے پرواہ ہو گیا؟ لیکن یاد رکھو، جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ خوف کی گھٹن نے لوگوں کو خاموش کر رکھا تھا، کوئی کھل کر بات نہیں کر پاتا۔ ایک دن سلیم نام کا ایک غریب لکڑہارا اپنے بچوں کی روزی کی تلاش میں شہر آیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر میں چھوٹے بچے بھوک سے روتے تڑپتے تھے۔ وہ بڑی امید کے ساتھ حاکم کے محل پر پہنچا۔ جناب، میں ایک غریب آدمی ہوں، کئی دن سے میرے گھر چولہا نہیں جلا، اگر اب تھوڑی مدد کرے تو میرے بچے بچ سکے۔ جاہد نے اس پر نفرت بھری نظر ڈالی اور غصے میں چیخ الفاٹے، میرے پاس وقت نہیں کہ ہر محتاج کی مدد کروں، جا یہاں سے، ورنہ سپاہیوں کو کہہ دوں گا کہ تمہیں سزا دے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، حاکم، اللہ سے ڈرو، جو طاقت آج تمہارے پاس ہے وہ کل چھین بھی سکتی ہے۔ دنیا میں کسی کا رہنا ہمیشہ۔ جاہد کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے غصے میں اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، اس غریب کو پکڑو، اور پھر سخت حکم دیا، بازار میں اسے سکوڑے مارو، تاکہ کوئی میری مخالفت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ بے چارہ سلیم کوڑوں کی مار سے بے حال ہو گیا، جبکہ لوگ دور کھڑے ہے کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اوتن جرت نہیں تھی کہ اس کی مدد کے لیے آگے آئے۔ اس کی مظلوم بیوی اور بچے آنسو بہاتے ہوئے خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ پکار رہے تھے، اے اللہ، تو انصاف کا سب سے بڑا نمونہ ہے، اس ظالم سے ہمارا بدلہ لے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو سلیم اپنی کمزور جھونپڑی میں وہ درد میں تڑپ رہا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، انساہے سے بھیگی آنکھوں سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے کسی کا حق نہیں لیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر بھی آج میں صرف اس لیے کوڑے کھا رہا ہوں کہ میں نے تیرا نام یاد دلایا تو سب دیکھ رہا ہے۔ اگر میری دعا قبول ہوتی ہے تو اس ظالم کو اس نے اپنے منصوبے کا انجام دیا۔ دوسری جانب جاہد اپنے محل میں خوشی کا جشن منا رہا تھا۔ شراب کی محفلیں، موسیقی اور رقص، اسے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کہ باہر کتنے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ فخر سے کہتا، میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، یہاں کسی کی جرت نہیں کہ میرے خلاف آواز اٹھائے۔ میری طاقت کو کوئی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ جب کوئی انسان ظلم میں حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اسے مہلت دیتا ہے، تاکہ وہ اور گناہ کر سکے اور آخرکار اس کی رسو کھینچ لی جائے۔ چند ہی دنوں میں شہر پر قحط پڑ گیا۔ بارش رک گئی، کھیت سوکھنے لگے، کنویں خالی ہو گئے۔ غریب لوگ بھوک، سلیم اور دیگر مزدور بے بسی سے روتے رہے۔ اکال کے اس سخت دور میں ان کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جاہد، جو دولت مند تھا، اپنی محفلوں اور خزانوں میں مصروف رہا۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی آخری چیزیں بھی چھین لے۔ مجبور لوگ اپنا سب کچھ، گھر، زمین اور یہاں تک کہ خواتین نے اپنے زیورات بیچ کر اناج خریدنے لگے۔ جاہد نے اناج کے ذخائر جمع کر لیے اور ان کی قیمتیں اتنی بڑھا دے کہ عام آدمی خریدنے سے قاصر رہ گیا۔ شہر کے باشندے بھوک سے تڑپنے لگے اور آہستہ آہستہ نفرت اس کے خلاف اکٹھی ہونے لگی۔ ایک دن شہر کے کچھ بزرگ اس کی عدالت میں آئے اور حاکم سے کہا، رحم کرو،
लोग भूख से तबाह हो रहे हैं। खुदा से डरो और अपने अंबार खोल दो। लेकिन वो तकब्बुर से बोला, ये अनाज मेरी मेहनत का समर है, मैं इसे आसानी से नहीं बांट सकता। सिर्फ मालदार लोग खरीदे, बाकी भूखे मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसका ये सख्त जवाब सुनकर लोग मायूस और टूटे दिल वापस चले गए। फिर भी हर किसी के दिल में जैसे जहर भरे बादल छा गए। गरीबों की चीखें आसमान को चीर रही थीं। हर रात हर दिन अल्लाह की अदालत में उनकी फरियादें गूंज रही थीं। जब कोई मजलूम आह भरता है तो वो सीधे अर्श तक पहुंच जाती है। फिर वही हुआ जिससे सब डर रहे थे। शहर में अचानक एक खौफनाक वबा फैल गई। सबसे पहले जाहद के महल के नौकर बीमार हुए, फिर इसके सिपाही, इसके करीबी लोग भी। लेकिन इसकी उड़न, इसकी गुरूर बरकरार था। वो चीख कर कहता, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, इसकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीमारी इसके महल में फैल गई। इसकी दौलत, इसके सिपाही, इसके साथी सब इस बीमारी से मरने लगे। इसने दवा अपने तमाम खजाने खो दिए, मगर बीमारी पर काबू ना पाया। आखिरकार वही बीमारी इसके जिस्म में घर कर गई। इसका बदन कांपने लगा, चेहरे का रंग सफेद हो गया और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। अब इसे एहसास हुआ, असल ताकत खुदा की है, इंसान की नहीं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जाहद महल की तंग दीवारों में फंसा, बीमारियों से जोजेता हुआ। इसका कभी चमकदार चेहरा अब परेशान और जर्द हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले दाग, जैसे जिंदगी की तलखी की निशानी। सांसें भारी और मुश्किल। वो जिस दरबार में कभी सैकड़ों लोग एहतराम से खड़े होते थे, अब वीरान और खामोश था। लोगों की नफरत ने इसे एक तन्हा और मायूस इंसान बना दिया था। ऐसा लगता था कि कोई भी इसकी हालत देखने न आए। इसके नौकर एक एक करके आ तो मर गए, आ बीमारी के डर से भाग गए। इसका शानदार महल अब वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जहां कभी मौसीकी और खुशी की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ कराहने और खामोशी का समा था। जाहिद अपने कमरे में तन्हा पड़ा, अपनी तड़पती बीमारी से जंग लड़ रहा था। इसके दिल में पहली बार एक गहरा खौफ पैदा हुआ। इसने सोचा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पास सोना, चांदी, दौलत, गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन आज मेरी इस हालत में ये सब बेकार साबित हो रहा है। वो रात को तड़पता और सोचता, अगर इसके पास कोई सच्चा दोस्त होता, अगर लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत होती, तो शायद आज कोई इसकी देखभाल करता। लेकिन इसे सिर्फ तन्हाई और गम ने मजबूर कर दिया। सलीम लकड़हारे की जिंदगी अब और भी तल्ख हो गई थी। कहत और बीमारी ने इसे कमर तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को उम्मीद देता रहा। हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया की मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारा रब सबसे बड़ा है। वही हमें सुकून देगा और वही जालिमों का हिसाब लेगा। मजलूम पिदर सलीम आंसू भरी आंखों से अपनी बीवी को देखता, जबकि बच्चे बेचैन। कैसे रोके अपनी भूख को। वो हर रोज जान जोखम में डालकर जंगल से लकड़ियां काटता, शहर में बेचता, मगर मेहनत की कमाई सिर्फ 2 रोटियों कितनी कम। अपने बच्चों को खाना देता, खुद भूखा सो जाता। लोग अब मान चुके, खुदा की कुदरत के सामने कोई नहीं बच सकता। गिल्ली कूचे में लोग कहते, देखो वो शख्स जो कभी ताकत के नशे में डूबा था, आज इसके घर में मौत का साया मंडला रहा है। कई लोग चुपके से इसकी हालत देखने आते, महल के बाहर से गुजरते, और जब खबर मलती के हाकिम और भी बीमार हो गया है तो वो कहते, ये सब अल्लाह का इंसाफ है। जिसने गरीबों की आह ली, वो कैसे चैन से रह सकता है। उधर जाहद अपनी हालत इसने देखा और भी बेचैन हो गया। एक तारीख रात इसने ख्वाब में देखा, वो एक सिया जगह में खड़ा है, जहां आग की लिपटें चारों तरफ से उठ रही हैं। लोग दर्दनाक चीखें मार रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन इसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, ये उनका अंजाम है जो दुनिया में जुल्म करते हैं, गरीबों के हक छीनते हैं और मजलूमों को रोते हुए छोड़ देते हैं। जाहद चीख करने आंखें खोली, पूरा बदन पसीने में तेर तेर कांप रहा था। पहली बार इसके दिल में तौबा का ख्याल आया, मगर अब भी इसका दिल पूरी तरह नर्म नहीं हुआ था। इसने सोचा, अगर मैं बच गया तो अल्लाह से मुआफी मांगूंगा, लेकिन अब तो मुझे किसी तरह इस बीमारी से निकलना है।
इसने शहर के हकीमों और दवाओं की मदद ली, मगर कुछ भी कारगर न हुआ। बीमारी दुमबदन बढ़ती गई। फिर दूसरी जानिब सलीम ने एक तारीक रात दिल से पुकारा, ए अल्लाह, इस जालिम को हमारे सामने गिरा दे। इसकी दुआ में इतनी सच्चाई थी कि आसमान तक पहुंच गई। चंद दिन बाद अचानक जाहद की हालत इतनी खराब हो गई कि वो उठ भी ना सका। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने अपने नौकर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वो अकेला था। पहली दफा इसे एहसास हुआ कि ताकत और दौलत बेकार है। दिल में एक तड़प उठी। आंखों ने आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, अगर तो सच में मौजूद है तो मुझे बचा ले। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। इसी लम्हे इसकी जिंदगी के तमाम गुनाह एक के बाद एक इसके सामने आने लगे। याद आया कि किस तरह इसने गरीबों की जमीन नाजायज तरीके से छीन ली थी, कैसे बेगुनाह बच्चों को जान से मारा। ओह, इसके दिल में दहशत ने जगह बना ली। शहर में आवाज फैल गई, हाकिम मौत के दहाने पर। लोग पछतावे में डूब गए। अब वो खुदा के सामने जवाबदेह होगा, जहां ना ताकत काम आएगी ना दौलत। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत इतनी खराब हुई कि इसने महल के दरवाजे खुलवा दिए। लोगों को बुलाया कि शायद कोई इसकी मदद कर दे, लेकिन जब लोग अंदर आए तो उन्होंने एक मायूस, कमजोर और तड़पते हुए इंसान को देखा। वही शख्स जो कल तक मुतकब्बिर था, आज पानी के लिए दूसरों पर मुनहसिर था। कई लोगों ने कहा, देखो अल्लाह का इंसाफ कैसा है। जिसने मजलूमों की चीखें सुने, वो आज खुद तड़प रहा है। एक दर्दनाक तब्दीली। इसके कमरे में मुतलक खामोशी छा गई। जाहद ने कांपते किया, कोई मुझे मुआफ कर सकता है? किया कोई मुझे बचा सकता है? लेकिन लोगों ने जवाब दिया, अब ये तेरा मुआमला तेरे और अल्लाह के दरमियान है। हम सिर्फ गवाह हैं कि तूने कितना जुल्म किया है। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। वो रो पड़ा और कहने लगा, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा होता। आज मैं अकेला हूँ, मेरी दौलत किसी काम ना आई। गुरूर के खतरात वाजे हुए। अपने बच्चों को नसीहत की, दुनिया आर्जी है, ताकत और दौलत पर फख्र मत करो। जब दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, इंसान का अंजाम ऐसा ही होता है। जाहद मौत के दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो हर पिल तड़प रहा था, सोचते हुए, अब मैं खुदा के सामने कैसे जवाब दूं। शहर की फिजा में एक गैर मामूली खामोशी और दहशत छाई हुई थी। लोग आपस में सरगोशी कर रहे थे। देखो, कल तक ये जाहद लोगों पर हुकूमत करता था और आज मौत के सामने लाचार हो गया है। हर गिल्ली और कूचे में बच्चे, बूढ़े और औरतें एक ही बात कर रहे थे कि अल्लाह की गिरफ्त से कोई भी बच नहीं सकता। ये मंजर लोगों, जाहद जिंदगी की एक तल्ख दास्तान बन चुका था। इसके महल में अब सिर्फ दर्द की आहें गूंजती थीं। कभी इसके पास नौकर चाकरों का हुजूम रहता था, लेकिन अब खामोशी ने इस जगह पर राज किया है। बाहर खड़े लोग इसकी हालत देखने आते, मगर अंदर कोई मदद करने नहीं जाता। लोग कहते, जिसने हमारे बच्चों को भूखा रखा, एजाज छीने गए और हमें तड़पाया, तो फिर हम कैसे मदद कर सकते हैं। ये वही खुदा का इंसाफ है जो हमारे सामने खिलकर नुमायां हो रहा है। जाहद का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। इसकी ताकत, दौलत और गुरूर सब मिट चुके थे। वो अपने बिस्तर पर पड़ा हर लम्हा तड़पता और अपने गुनाहों को याद करता। इसकी आंखों के सामने वो तमाम चेहरे आते जिन्हें इसने रुलाया था। सलीम का मासूम चेहरा याद आता, जब इसने अपने बच्चों की भूख का जिक्र किया था और इसने इसकी बात सुनने की बजाय इसे कूड़े मरोए थे। जाहद की आंखें आंसुओं से भर जाती और वो कहता, काश मैंने इस दिन इसकी मदद की होती। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। गुनाहों का बोझ इसके दिल को और भारी कर रहा था। इस दौरान शहर में सलीम की हालत इंतहाई परेशान कुन थी। कहत और भूख ने इसके घर की रौनक छीन ली थी। इसकी बीवी और बच्चे कमजोर और निढाल हो चुके थे, मगर फिर भी वो सब्र करता रहा और कहता, अल्लाह की मदद में ताखीर हो सकती है, लेकिन जुल्म कभी नहीं। जब इसका फैसला आता है तो किसी ताकतवर का गुरूर में मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन शहर के चंद लोग सलीम के पास आए और कहा, देखो इस जालिम का क्या हाल हुआ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, अब वो मौत के बोसे में है। ये सुनकर सलीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे रब तो ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है।
हमें तो सिर्फ सब्र का हुक्म दिया गया है। इस वक्त महल में जाहद, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अपने करीबियों से कहलवाया, सलीम लकड़हारे को मेरे पास लाओ, मैं इससे माजरत चाहता हूँ। ये खबर सुनकर लोग हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन ही न हुआ कि जो शख्स कभी अपने सामने किसी गरीब का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करता था, आज वही इसे बिला रहा है। जब ये खबर सलीम तक पहुंची तो वो सोच में डूब गया। इसके दिल में गुस्सा भी था और रहम भी। इसकी बीवी ने कहा, जाओ, शायद वो तौबा करना चाहता हो। सलीम अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ बढ़ पड़ा। महल में दाखिल होते ही इसने देखा कि जो कभी चमकते हुए हाल अब खाक और वीरंगी से भर चुके थे। जाहद बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। इसने सलीम को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए लहजे में बोला, सलीम, मैं एक मुजरिम हूँ। मेरे जुल्म ने गरीबों को तबाह कर दिया। अब देखो, मेरी दौलत, मेरे महल, मेरे सिपाही सब बेकार हैं। मुझे मुआफ कर दो। सलीम के दिल में रहम जाग उठा। इसने कहा, जाहद, इंसान की मुआफी सिर्फ तब मानी रखती है जब वो अल्लाह से तौबा करे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अल्लाह मत डरो। जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही करतूत का नतीजा है। मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ, लेकिन हकीकी मुआफी तो रब ही दे सकता है। जाहद बेइख्तियार रोने लगा। आंखें इंसाहे से भर गईं। इसने आसमान की तरफ नजर उठाई। ए अल्लाह, मैं तेरा कमीना बंदा हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे मुआफ कर दे। और फिर इसके दिल में एक गहरा डर था, तौबा की दुआ कबूल ना हुई। शहर वालों ने इसकी दास्तान पर जुबान खोल दे। कोई कहता, ये खुदा का इंसाफ है, कोई कहता, ये एक सबक है कि इंसान चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब जाहद ने अपनी आखिरी सांसें ली। इसके महल में कोई इसके करीब नहीं था, सिर्फ चंद लोग दूर खड़े थे। वो इस मंजर को देख रहे थे। मरने वाले की खबर शहर में बिजली की तरह फैल गई। क्या हैरत की बात थी कि इसकी मौत पर किसी ने आंसू नहीं बहाए। लोग पिछले लम्हात में कह रहे थे, एक जालिम चला गया, शायद अब हमारे शहर में सुकून आए। इसकी लाश को इसके सिपाही बड़ी मुश्किल से दफन करने ले गए, और वहां भी लोग दुआ की बजाय सिर्फ कह रहे थे, ए अल्लाह, इसको इसके कामों का मुकम्मल बदला दे। ये मंजर देखकर सलीम की आंखों से आंसू रवाना हो गए। इसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चे, यही नतीजा जुल्म का होता है। दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो दूसरों पर जुल्म करेगा तो आखिरकार अल्लाह का इंसाफ इसे जरूर पकड़ लेगा। जाहद का महल आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगा। जाहद की मौत के बाद शहर में एक अजीब सुकून छा गया। इसकी दौलत तबाह हुई, इसके सिपाही बखर गए, और इसका नाम सिर्फ एक मिसाल बनकर रह गया। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लोग अब खिलकर सांस ले रहे थे। वो खौफ जो उनके दिलों में बरसों से बैठा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो जमाना महव हो रहा था। जो लोग कभी हाकिम के महल की दहलीज पार करने से डरते थे, अब अपने घरों में आराम से रह रहे थे। मगर जुल्म के निशान जो कहीं ना कहीं बाकी थे, अभी भी शहर के कोनों में मौजूद थे। कई घर वीरान हो चुके थे, कई बच्चे यतीम हो गए थे, और कई बेवाएं अपने शोहरों की याद में आंसू बहाती रहे। हर खंडर, हर बर्बादी की नजर एक दर्द की दास्तान कहती, ए रब, किसी शहर को ऐसे जालिमों के चुंगल में ना पड़ने देना, जहां रहम की कोई निशानी ना हो। सलीम अब भी अपनी जर्गी में मेहनत करता, रोजी कमाने की जिदोजहद में, और इसके दिल में एक नई सुकून की एक गहरी सांस। जब वो अपने बच्चों से कहता, देखो, अल्लाह देर तो कर सकता है मगर जुल्म कभी नहीं। हमने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने हमारा हक दिलाया। ये याद रखना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की जात में है वो कुदरत जो इंसानों को सजाती है। जाहद की मौत के बाद शहर के बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और उन्होंने फैसला किया कि नया हाकिम वही होगा जो रहम दिल, लोगों की मदद करे और अल्लाह का खौफ दिल में रखे। सबकी नजर सलीम पर ठहरी, एक गरीब इंसान जिसके पास सिर्फ ईमान की दौलत थी। लोगों ने कहा, ये सब्र करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का हक नहीं मारता। अगर ये हाकिम बना तो हमारी जिंदगी का मुसीर बदल जाएगा। पहले सलीम ने हर तरह से इनकार किया, अपनी सादगी का हवाला देते हुए कहा, मैं महज एक आम लकड़हारा हूँ, हुकूमत से मेरा क्या वास्ता,
मगर लोगों ने इसे कायल किया। तुम्हारी सादगी ही तुम्हें असल कायद बना सकती है। हमें ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो खुद के बजाय लोगों के लिए जीता हो। आखिरकार सलीम ने अलीले के नाम पर इस जिम्मेदारी को कबूल किया, और जब इसने हुकूमत संभाली तो सबसे पहला अक़दाम जाहद के खजाने खोलकर गरीबों में तकसीम कर दिए। अनाज के गोदामों को लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। भूख से तड़पते बच्चों के चेहरे खिल अलिफाट है। ख़वातीन ने दुआएं दे और बूढ़ों की आंखों में सुकून की आंसू रवाना हुए। सलीम ने शहर में इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की कि लोग इसे आदिल हाकिम कहने लगे। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था। इसने अदालतों में साफ हुक्म दिया, अमीर को गरीब सब बराबर हैं। अगर किसी पर जुल्म हुआ तो चाहे वो अमीर हो या गरीब, सजा का कोई छूट नहीं। लोग अब कहते हैं, जो शहर कल जुल्म की तारीकी में डूबा था, आज वही इंसाफ की रोशनी से चमक रहा है। यही फर्क होता है जब हुकूमत साहिब तकू के हाथों में हो। सलीम की हुक्मरानी ने शहर को खुशहाल बना दिया। खेतों में फिर से हरी भरी जमीन फिर से जान ले आई। बारिश के मौसम ने दस्तक दी। कुनवे आबादी से लबरेज हो गए। मानित करने वाले अपनी मेहनत का मेवा चखने लगे। बच्चे खुशी से खेलते और हंसते। इस मंजर को देखकर हर शख्स कहता, ये अल्लाह का इनाम है, हमारी सब्र का नतीजा और जालिम की बर्बाद कुन तकदीर। लेकिन सबसे अहम सबक ये था, जुल्म कभी दवाम नहीं रखता, चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बहुत ताकतवर क्यों ना हो। अगर वो मजलूमों के आंसू पोंछेगा तो एक दिन इसका गुरूर धूल में मिल जाएगा। सलीम एक दिन अपने बच्चों के साथ बैठा था। इसने उनसे कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसाफ और रहम है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो इसे लोगों की मदद में लगाओ, उनके दिल जीतने में लगाओ। अगर तुम भी गुरूर में पड़कर किसी का हक मारोगे तो तुम्हारा अंजाम भी इसी जाहद जैसा होगा। बच्चों ने अहद किया, हम हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर चलेंगे। सलीम ने फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और दुआ की, ए अल्लाह, हमें हमेशा सीधी राह पर रखना। हमें कभी ऐसा इंसान ना बनाना जो दूसरों को रोला दो। जिंदगी की सख्त राहों में हमें नेकी का सहारा दे। शहर ने अपने तल्ख गुज़िश्ता से सीखकर एक नई उम्मीद का सफर शुरू किया। पीढ़ी दर पीढ़ी वालिदैन अपने बच्चों को जाहद की दास्तान सुनाते। देखो, जुल्म का अंजाम क्या होता है।